क्या कहता है वोटर, ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं हैदराबाद की सबसे आइकॉनिक इमारतों में से एक आर्ट्स कॉलेज के सामने। आप देख सकते हैं आर्ट्स कॉलेज जो आज़ादी की तहरीक से जो है यहाँ पर काफ़ी जो है इनकलाबी सरगर्मियों का मरकज़ रहा है। आज़ादी की तहरीक के बाद जो तेलंगाना की तहरीक चलाई गई, पहली तहरीक 1969 की, और उसके बाद 2000 के बाद यहाँ पर काफ़ी जो है सरगर्मियाँ होती रही हैं। ख़ासतौर पर इसको तेलंगाना तहरीक का तहरीर स्क्वायर भी कहा गया है। जानने की कोशिश करते हैं, लोकसभा के इंतखाबात आने वाले हैं, क्या सोचते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स भी। आइए सबसे पहले स्टूडेंट्स से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर एक नौजवान खातून। बात करेंगे किस किस्म की गवर्नमेंट ये चाहते हैं। मैम बोलिए, इलेक्शंस आने वाले हैं, लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, आप किस किस्म की हुकूमत चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त आप? मुझे ऐसे गवर्नमेंट चाहिए कि who has answerability, because there is no answerability or transparency in the policies. I cannot trust it. There is no credibility in the present government. Looking at demonetization, it was like a huge mistake. It was a historical mistake. The whole world is laughing at us. There is no proper paper trail or anything. There is no explanation for that. Coming back to the funds assigned for research and development is also a very shameful fact. Because if you see any other country where it is developing, most of the funds are directed towards research and development. Even capitalistic nations, when we see, they invest most of their capital towards research. When we look at the present situation in India, there is no respect for research or research-based students. And looking at the employment levels also, as promised by Sir Modi ji, he promised a lot of jobs, like almost in crores of jobs, but then I don't get to see them. And I think it's a huge blunder whatever he made. And looking at the Rafale deal also, we don't know whom to blame, and there is a lot of curbing of the media also. Whoever raises their voice is just like treated as anti-national or anti-Indian. I don't know. There is no proper distinction between patriotism and nationalism, and I don't know what is this. Whoever is going and saying Jai Modi or Namo Namo, they are all benefiting, and they are all being projected in the media. The rest of them, whoever is voicing anything against the government, is being curbed down and targeted. Even when we see the murders of certain prominent media persons, okay, they are not solved yet. And when we see it's a very pathetic situation, and I think this needs to. एक दो जुमले ये भी बोलिए कि आप किस किस्म की गवर्नमेंट चाहती हैं। आपने तो कह दिया कि आप किस तरह की नहीं चाहती, बताइए कि किस तरह चाहिए, क्योंकि काफ़ी मसाइल हैं, काफ़ी इश्यूज हैं। तो आप एज ए जो है स्टूडेंट, आप क्या देखती हैं 5 साल में आपको किस तरह की हुकूमत चाहिए? First of all, I need a government which is more secular. And secondly, a government which sees the progressive development, okay, not just sticking to whatever happened in the past, but then looking forward and going towards the progress. We have been developing nation since long. When are we going to be a developed nation? So I want a government to see that. Thank you, ma'am. आपके पास आते हैं, बताइए भाई, इलेक्शंस आने वाले हैं, जो है यहाँ पर डेट का भी ऐलान हो चुका है, आप क्या समझते हैं एज ए स्टूडेंट, आपको किस किस्म की हुकूमत चाहिए? अब अपन हुकूमत में इंडिया अब तक इंडिपेंडेंट आके 17 ईयर्स हो रहा। 17 ईयर्स हो रहा, मगर आज भी कौन सी भी गवर्नमेंट पब्लिक की जो नीड्स है फुलफिल कौन सी भी नहीं करे आज तक। जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन 70 ईयर से फिर सेम वही प्रोसेस हो रहा, और वो प्रॉब्लम सॉल्व में हो रहा, फ्यूचर में और बढ़ते जा रहा। एम्प्लॉयमेंट का हो या सोशल इक्वालिटी भी, और डिस्क्रिमिनेशन बहुत हो रहा, दलित एंड मुस्लिम्स पे अटैक्स हो रहे आजकल। यूपी में आप देखिए, यूपी में और नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन बहुत हो रहा, वहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो या रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन। और मीडिया में भी आजकल क्या हो रहा, स्पेशली जो ना डेवलपमेंट और जो इश्यूज पे नहीं बात करे वो लोग, ओनली रिलीजन, कास्टिज्म। अब राम मंदिर इशू, आप राम मंदिर इशू लेके क्या करते हैं? अब वो कुछ डेवलपमेंट होता है उससे? तो आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए हुकूमत को? जो आने वाली हुकूमत है वो किस तरह की होनी चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा फोकस किस जो है इशू पे होना चाहिए? क्या सबसे बड़ा मसला हमारे लिए क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्या है? सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है अपने पास इंडिया में, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो नेशनल पार्टियां हैं, सो कॉल्ड नेशनल पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, उनका जो है यहाँ पर कोई असर दिखाई नहीं देता, ऑलमोस्ट वो जो है दिखाई नहीं देते। तो आप क्या समझते हैं, यहाँ पर क्या सिर्फ एक ही पार्टी का तसल्लुत होगा, एक ही पार्टी के लोग जो है ज्यादा मुंतखब होंगे? ये वो तो देखना चाहिए, इंशाल्लाह वैसी हो, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आजकल पॉलिटिकल लीडर्स का इमोरल
अनएथिकल लीडर्स है। आज कोई एक लीडर ऐसा नहीं है कि मैं ये पार्टी वाला हूं तो जिंदगी भर उसके पार्टी के साथ रहता, बल्कि हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। आज जीत रहा 2 घंटे भी नहीं हो रहा, उन्हें दूसरी पार्टी बात डाल रहा, ऐसा लीडर हमारे को रूल कर रहे, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे ये बदमाशों से, ये गलत पॉलिटिकल लीडरों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पोस्टों के सिवा, पोजीशनों के सिवा कुछ चाहिए नहीं। पब्लिक का इंटरेस्ट ही नहीं है, पब्लिक एम्प्लॉय कुछ करेंगे पब्लिक के वास्ते बल्कि कोई है ही नहीं। सब अपना घर भरो, अपना पेट भरो, अपना घर भरो दिख रहा है। मेरे साथ एक और जो है यहाँ पर उस्ताद हैं। सर बोलिए, इलेक्शन आने वाले हैं, किस तरह का जो है लोग जो है किस तरह की हुकूमत चाहिए हमारे मुल्क को, हमारे कंट्री को? 17th लोकसभा चल रहा है, पूरा देख रहा। 17 लोकसभा इलेक्शन टाइम में प्रॉमिस देते, फुलफिल नहीं करे। 70 अभी तक देखो कौन सा पार्टी भी आया, कांग्रेस आओ बीजेपी आओ, वो क्या करते, कांग्रेस को वो आते हैं कांग्रेस पार्टी ना डेवलप, बीजेपी आते 4 साल में डेवलप, क्या डेवलप करेगा नहीं मालूम। अनएम्प्लॉयमेंट सेम है, प्रॉब्लम्स है, पूर्व कैस्टिज्म रिलीजन लगा के वो अधिक पावर में आने का वो सोच रहा है, पूरा ये करेक्ट नहीं है। तेलंगाना गवर्नमेंट वही है, पूरा सार बोलिए ना 1000-2 रुपया तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन का एम्प्लॉयमेंट दिखाना पड़ता, बच्चों का नहीं, यूनिवर्सिटी को देखा, शादी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हॉस्टल खाने के जाने के कुछ नहीं है, फैसिलिटी भी नहीं है। 100 ईयर से कम्प्लीट 100 ईयर्स आएगा और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बात करा यूनिवर्सिटी पे। हायर एजुकेशन सोसाइटी पूरा 100% में 10% सोसाइटी पूरा सैक्रिफाई करता है, पूरा एजुकेशन टेक्नोलॉजी पूरा 10% लोग, 90% अनस्किल्ड डेवलपमेंट 10% वो पूरा लेगा। 10 वो कुछ ही यूनिवर्सिटी को फंडिंग नहीं देता, कुछ नहीं दे रहा, डेवलपमेंट कैसा होता? हाँ, पूरा यूनिवर्सिटी को डेवलप करना, बच्चों को डेवलप करना, सोसाइटी आगे बढ़ते। सोसाइटी आप क्या चाहते हैं यूजीसी खास तौर पर इस पर ध्यान दे और स्टूडेंट्स जो है टीचर्स को? पूरा ये ऑटोनमस बॉडी है, ऑटोनमस बॉडी है, वो ऑटोनमस का काम नहीं कर रहा, पूरा गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप कर रहा है। हायर एजुकेशन है, कुछ है, पूरा क्या गवर्नमेंट क्या बोलते हैं वो काम नहीं करते। यूजीसी पे देखो, सुप्रीम कोर्ट में ऑटोनमस है, काग ऑटोनमस है, पूरा देखे तो पूरा कौन इम्प्लीमेंट कर रहे? आगे सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा चला, डिवाइड भी हो गया, क्या हुआ? ये क्या चल रही है इंडिया में? पूरा लोगों को कुछ नहीं मालूम हुआ। सुप्रीम कोर्ट एक ग्रुप है और एक ग्रुप है। तो आप क्या समझते हैं सर, जो आने वाली हुकूमत हो वो किस तरह की हो? सबसे उनकी ज्यादा प्रायोरिटी जो है किस इश्यूज पे होना चाहिए? कंपलसरी कुछ ही पार्टी आए तो एम्प्लॉयमेंट का एक कंपलसरी दिखाना और बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन का परमानेंट सॉल्यूशन दिखाना। पैसे 1000 रुपया 2000 देता, एग्रीकल्चर को 2000 देता, महीने में 10,000 देता, ये नहीं है। वो लोगों क्या बोल रहे हैं, मिनिमम प्राइस देना, वो एग्रीकल्चर को मिनिमम प्राइस दे तो वो आगे बढ़ते। मैं 1000-2000 ये कम वो नहीं मांग रहा हो, वो नहीं पूछ रहा हो, 1000-2000 नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन का ये मिनिमम प्राइस क्या है, तो वो एग्रीकल्चर को प्राइस दे रहे, तो वो एग्रीकल्चर वो डिमांड कर रहे, ये 1000 देता 2000 देता, ये कौन पूछ रहा? वो कौन भी नहीं पूछ रहा। एग्रीकल्चर वालों भी पूछे तो वो जाए तो 1000-2000 कई को। हम लोग हैदराबाद में हैं और आप देख सकते हैं ये मीरालम मंडी है, यहाँ पर जो है पुराने शहर हैदराबाद की तारीखी तरकारी की मार्केट है, 200 साल कदीम है। यहाँ लोग आते हैं, तरकारी खरीदते हैं और जो अतराफ अकनाफ के जो किसान हैं वो भी अपनी तरकारी लाते हैं और यहाँ पर खरीदो फरोख्त करते हैं। जानने की कोशिश करते हैं क्या तासुरात हैं इनके जो लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं। आइए बात करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक तरकारी के ताजिर हैं। भाई बताएं आपका नाम क्या है? शेख अहमद। अहमद साहब आपको मालूम है पार्लियामेंट के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं? जी हाँ। कब है तारीख वगैरह कुछ पता है आपको? ये रमजान में कुछ तारीख है, नहीं तारीख तो याद नहीं है, रमजान में है। बहरहाल आपको मालूम है कि लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं? जी हाँ मालूम है। तो आप क्या समझते हैं, क्या 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 किस किस्म की गवर्नमेंट चाहते हैं आप? लोकसभा में कौन जो है इलेक्ट होके आए? बस सुकून शांति चाहते हैं साहब, कोई भी आए, क्या करना है। तो अभी जो गवर्नमेंट है सेंटर में, उसको लेकर आप क्या समझते हैं, किस तरह की गवर्नमेंट है सेंटर में? सेंटर इस तरह की क्या है साहब, वफील लोग तो यहाँ पे तो ऐसा है हाल, कोई हम यही चाह रहे हैं कि सब सुकून में रहे, आगे पीछे जो भी है सुकून में, कोई भी आओ, बस यही चाह रहे हैं हम। बेहद शुक्रिया आपका। यहाँ पर एक ताजिर हैं हमारे साथ। भाई बताएं आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? गफ्फार साहब क्या करते हैं आप? हम वेजिटेबल सब। मालूम है आपको लोकसभा पार्लियामेंट के इंतखाबात? लोकसभा हम यूट्यूब रोज देखते हैं 4 घंटे हम। जी जी जी। कब है तारीख का है यहाँ पर हैदराबाद में, कब जो है इंतखाबात? 11 से स्टार्ट है, यहाँ कब है इतना नहीं है, अगले महीने 11 से है ना। जी। आप क्या समझते हैं जो भी हुकूमत आए,
जो सेंटर में वो किस किस्म की हुकूमत हो? क्या आपके जी राहुल गांधी की हुकूमत चाहिए, आपको राहुल गांधी चाहिए, यानी कांग्रेस की हुकूमत? कांग्रेस की हुकूमत चाहिए, बेहतर हुकूमत, बेस्ट वही चाहिए वो। तो क्या मुतालिबात हैं आपके, जब अब हुकूमत अगर आए तो वो किस तरह के जो है काम करें आवाम के लिए? हम हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, पब्लिक आवाम हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर बोल के लड़ा दे रहे, ऐसी बात है, इसकी जरूरत ही नहीं है, कौन है जी। उसके अलावा जो आप भाईचारगी की बात कर रहे हैं, सब में भाईचारगी हो, उसके अलावा जो है क्या जो दूसरे और क्या मुतालिबात हैं, किस किस्म की हुकूमत आए, आप क्या समझते हैं? हुकूमत तो भाई कांग्रेस रहे तो बेस्ट रहता, सुकून रहता। अभी हुकूमत में जहाँ बोले लड़ाई झगड़े पूरा धूम यूपी में देखो आप, पूरा सत्रोल करिए, धूम मचा दिया पूरा यूपी में, पूरा सत्रोल कर दिया पूरा यूपी में, कुछ बोले सरकार नहीं है हुकूमत, कोई बीजेपी को। तो अभी हैदराबाद में जो है आप क्या समझते हैं, हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से या क्या सूरत हाल होगी, कौन उम्मीदवार होंगे, आप क्या समझते हैं, किस किस्म का जो है आपका मेंबर पार्लियामेंट हो हैदराबाद में? हैदराबाद में तो असद साहब है यहाँ पे, असद साहब है यहाँ पे पार्लियामेंट में। तो आप क्या समझते हैं, आपका वोट किसके लिए होगा, क्या समझते हैं? हम तो पार्लियामेंट असद साहब को देते हैं, हम तो एमपी का भी इनको देते हैं हम। बेहद शुक्रिया आपका। आइए यहाँ पर और जो है दो नौजवान हैं, उनसे बात करते हैं हम। भाई आप बताएं क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन है साहब। यासीन भाई आप बताएं, आपको मालूम है पार्लियामेंट के इलेक्शन आने वाले हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है। जी हाँ, कब है इलेक्शन, कब है? 21 मार्च को है। यहाँ पर कब है, हैदराबाद में कब है पोलिंग की डेट? हैदराबाद में अभी 2 महीने है शायद। 2 महीने? जी, और रमजान में है इलेक्शन। रमजान में? जी। आप क्या समझते हैं जो भी जो है यहाँ पर हिंदुस्तान में जो मरकजी हुकूमत हो वो किस तरह की हो, क्या ख्वाहिशात हैं आपके लोकसभा के इलेक्शन को लेकर? हमें लोकसभा के इलेक्शन में इतना तो अंदाजा है कि बीजेपी आएंगे। जी हो। तो यहाँ पर हैदराबाद में क्या सूरत हाल है, हैदराबाद के लोकसभा के जो उनकी जो नशिस्त है या सीट है, आप क्या देखते हैं, कौन कौन में किन में मुकाबला होगा? तो MIM ही रहेंगी, क्यों बोलते तो हैदराबाद का इलेक्शन MP इलेक्शन MIM ही जीतेंगे, असदुद्दीन अवैसी साहब ही आएंगे। जी। जहाँ तक आपकी जो तिजारत का सवाल है, आप तरकारी की जो है तिजारत करते हैं, तो आप क्या समझते हैं हुकूमत आप जैसे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए क्या करे, खासतौर पर मरकजी हुकूमत की जो है आप जैसे बिजनेसमैनों के लिए क्या पॉलिसी हो, क्या डिमांड है आपके? हमारे डिमांड्स कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी बहुत हमें उससे इफेक्ट हुआ कि छोटे जो बाजार लगे गली गली, उससे हमें इफेक्ट हुआ है, बस और कुछ नहीं। जी। आपको क्या ख्वाहिश नहीं है कि आपका भी जो है जो तिजारत है आपकी वो जो है कुछ बढ़ जाए, आपको कुछ लोन्स वगैरह मिले, मरकजी हुकूमत कोई लोन्स वगैरह आपको फराहम करे, कुछ इस किस्म की ख्वाहिश है आपकी? बिल्कुल है, मगर ख्वाहिश तो है लोन, क्यों मतलब मरकजी हुकूमत पिछले बार भी देती बोली, अभी तक तो दी नहीं। जी। तो क्या स्कीम थी वो, क्या आप अप्लाई करें उसको, आपको नाम मालूम है वो स्कीम का? जी अप्लाई के चंद्रशेखर राव कुछ उन्होंने उस टाइम पे अप्लाई किए थे, मगर सिम का अभी तक पता नहीं चला। वो तो जो है रियासती हुकूमत की थी, स्टेट गवर्नमेंट की थी। पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम के बारे में मालूम है आपको? पता नहीं है हमें। एक और साहब हैं जो ताजिर हैं, बताएं सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद साबिर है मेरा नाम। साबिर साहब आप क्या करते हैं यहाँ पर, कौन सा? सरकारी का धंधा करता हूँ मैं भी। जी। कब से है आपकी दुकान? उस जमाने से कम से कम 40, 45, 50 साल से हमारी उम्र गुजर गई समझो यार। जी। आप लोकसभा के इंतखाबात के बारे में इत्तला है आपको? क्या इत्तला क्या है साहब, जो हुकूमत आएंगी उन्हें वही काम करेंगी। आप क्या चाहते हैं, किस किस्म की हुकूमत आए? आना है बस, KCR आना है बोल रहे हैं हम तो। अच्छा, यहाँ पर भी ऑलरेडी असेंबली इंतखाबात जीत चुकी है TRS, तो आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट में भी वो भी KCR ही आना साहब? पार्लियामेंट भी KCR जीते? यस बिल्कुल। लेकिन ये KCR की तो एक इलाकाई जमात है, स्टेट की जो है ये पार्टी है, सेंटर में भी उन्हीं के मरान जाए, वो चाहते हैं? ये लोगों को देख देख के तो थक गए साहब, जो काम करने वालों को देखना है अपने को। किसको देख के थक गए आप, किसको देख के थक गए? किसको देख के थक गए? अब ये लोगों को कांग्रेस है, BJP है, तुम्हारे जो है तेलुगु देशम है, सब देख देख के थक गए लोगों को, क्या करे बोलो आप? तो अब आप चाहते हैं कि TRS आए और उनके जो भी गरीब लोगों को कुछ तो कोई मदद होती ना। जी। बोलो आप, अब मिराला मंडी है, कोई देखने वाला नहीं है उसको, समझे ना? मेन रोड के ऊपर इधर एक कुंडी है, उधर एक कुंडी है, जाने आने में तकलीफ। अब चांदनीवार की रोड बन हो गई, तो ये भी तो स्टेट गवर्नमेंट का ही मसला है ना। तो KCR आप जब आपकी जो है आपकी मार्केट को साफ नहीं रख सके, तो कर रहा है ना, अब तो बेचारा कुछ भी कर रहा है ना,
सो रात में आके पूरा कचरा उठाने लगा रहा, वो करना लगा, आने जाने वालों को सहूलत हो रही थोड़ी। आप लोगों को जो है, जो छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए लोन वगैरह की, छोटे लोन वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत फराहम कर रही है लोन? बराबर कर रही बेचारी, जो भी करना है, जो भी मदद करना है, बच्चों की शादियां करा रही, हर चीज का जो है मदद कर रही, नहीं बोल के नहीं है। अब हर आदमी बोलता है भाई हमको ये होना, हमको वो होना, और जो देना है वही देते, जो करना है वही करते। बहुत शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अन्ना, बात करते हैं, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल साहब बताएं, लोकसभा के इंतखाबात आने वाले, मालूम है आपको? हाँ मालूम है। कब है वो आपको मालूम कब है? 14 अप्रैल को है। हैदराबाद में कब है पोलिंग डे? अपने को इधर नहीं होता। अच्छा ठीक है, बताएं आप क्या समझते हैं, किस किस्म की हुकूमत आए पार्लियामेंट में, सेंटर में, मरकज में? सेंटर में आना कांग्रेस। क्यों आना कांग्रेस? क्योंकि भलाई का है, अच्छा काम करेंगी कांग्रेस। क्योंकि मोदी साहब तो कुछ करे नहीं, सब सतरोल कर दिए बेचारे, नोटबंदी करे, वो करे, ये करे, सब विकास विकास बोले, कुछ भी विकास नहीं करे। गरीबों का तो विकास नहीं हुआ सब, इसलिए अब उम्मीद है कांग्रेस आई तो कुछ करेंगी, इतना ही है। आप एक व्यापारी हैं, तो आप बहैसियत व्यापारी आप हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे? जो भी मरकज में हुकूमत बनने वाली है, क्या डिमांड रहेंगे आप? क्या डिमांड क्या करेंगे, हम छोटे मोटे व्यापारी है, क्या डिमांड कर सकते हो? हुकूमत से जो चल रहा है वही चला लेते बस। हुकूमत से तो डिमांड कुछ कर ही नहीं सकते ना, कुछ चलता ही नहीं ना, बस आए, बस जो भी हुकूमत आए अच्छा करी तो बस। बेहद शुक्रिया साहब, थैंक यू। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, एक और यहाँ पे 2-3 व्यापारी हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं इनके क्या तासुरात हैं लोकसभा के इंतखाबात को लेकर। भाई बताएं, आपसे बात करेंगे 1-2 मिनट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हबीब हैदरुस है। हबीब साहब, लोकसभा के इंतखाबात आने वाले हैं, बहैसियत एक आवाम, एक आम इंसान, आप क्या समझते हैं, किस तरह देखते हैं ये इंतखाबात को? सब अच्छे रहे, मिलजुल के रहे तो बहुत अच्छा है, और कुछ भी नहीं। क्या डिमांड्स हैं आपके, आप क्या करते क्या हैं आप? मैं तो बाहर रहता हूँ, मैं तो दुबई में रहता हूँ। दुबई में तरकारी खरीदने के लिए आए हैं? मेरे दोस्त की दुकान है, इसके लिए आया। जी। तो आप एक बहैसियत एनआरआई आप क्या समझते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है लोग जो है गल्फ के स्टेट से जो है वापस आ रहे हैं, वहाँ पर जो है हालात ठीक नहीं है, यहाँ पर भी जो है आने के बाद लोग परेशान रहते हैं, तो बहैसियत एनआरआई आप क्या समझते हैं, मरकजी हुकूमत या सेंट्रल गवर्नमेंट एनआरएस के लिए क्या करे? हुकूमत एनआरएस के लिए तो ये करना है, वो वहाँ के भी हालत सही नहीं है, इधर थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, देखना चाहिए सबको इधर। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं, आप जो है क्या वापस आ गए हैं या फिर वापस दोबारा वापस जाएंगे आप? नहीं इंशाल्लाह मैं तो दोबारा जाऊंगा, क्योंकि इधर की भी हालत ठीक नहीं है, कुछ कारोबार में कुछ भी नहीं है। तो क्या करे, क्या ठोस इकदाम करे मरकजी हुकूमत एनआरएस के लिए, क्या समझते हैं? बस समस्या ये है, थोड़ा देखना चाहिए इधर भी कुछ, इधर हर चीज़ महंगाई हो गया इधर बहुत। कुछ रिहैबिलिटेशन के लिए कोई प्रोग्राम बनाया, ये आपका डिमांड ये है अपना, सबको अच्छे से देखा करो, यानी हर चीज़ महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, थोड़ा सा कम किया करो। देखो अभी सब्जी भी दुनिया का महंगा है, गरीब आम आदमी रोज़ का कमा के खाने वाला मुश्किल है। जो पसमानदा तबकात हैं उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, अगर वो डेवलप होंगे तो मुल्क डेवलप होगा। नाज़रीन हम बात कर रहे थे यहाँ पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज पर थे, हम बात कर रहे थे तुलबा से और असातिज़ा से भी। इनका मानना ये है कि मुल्क में ऐसी हुकूमत आए जो सेक्युलर हो और जो है सबके तरक्की के लिए काम करे, ख़ासतौर पर नौजवानों का मानना है कि बेरोज़गारी को दूर करे, ऐसी हुकूमत आए। कैमरामैन मनोहर के साथ मैं अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद।